کہ بجٹ 2025 اور 26 میں عام آدمی کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے یا نہیں؟ بجٹ 2025 اور 2026 یہ ہر سال کی طرح ایک طے شدہ بجٹ جو کہ ہمیں IMF سے پہلے سے ترتیب شدہ اور لکھا ہوا موصول ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی بجٹ میں کوئی خاص سٹیپس نہیں کیے گئے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو انکریز کیا جائے۔ کیا بجلی کے بلوں میں کمی آئی؟ کیا گیس کے بلوں میں کمی آئی؟ کیا آپ کی لوکل انڈسٹری کو کہیں فروغ ملا؟ کیا آپ نے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی بینیفٹس دیے؟ تو جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ انہوں نے ریکوری کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ کچھ امینڈمنٹ آرڈیننس بھی ایسا آیا کہ جس میں یعنی اس کا مطلب عام زبان میں یہ بنتا تھا کہ جی جو مرضی ہو جائے مینو ہے پیسے چاہیے۔ ہماری پارلیمنٹ کی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ ہم ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو پراپرلی انفورس کر سکیں، اپنے اشرافیہ پہ جو ٹیکس لگایا ہے وہ وصول بھی کر سکیں۔ آئی بلیو کہ کچھ چیزوں کو اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو بڑا اسپیسیفک بجٹ کے حساب سے، پالیسیز کے حساب سے اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ حکومتی پرفارمنس اور کارکردگی اور معاشی پالیسیوں میں کیا بہتری آئی ہے یا مزید ہم اپنی اکانومی کو اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کسی بھی لیگل ریزنز کے باوجود بغیر ٹیکس لگانا اور ان سے کلیکٹ کرنا وہ ایک ہمارا کھیل بن چکا ہے۔ اکنامکس پرسپیکٹو میں کچھ پالیسیز ایسی اوور آل لائی گئی ہیں حکومت کی طرف سے جس کا مجھے لگ رہا ہے کہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ آپ جب بھی کبھی بھی کسی ٹیکس آفس میں چلے جائیں تو سوائے وہ ٹارگٹس کی فگر کو میچ کرنے کے، مینٹین کرنے کے، شاید ان کی کوئی اور مصروفیات نہیں ہے۔ کہ جہاں پہ 5% ٹیکس کٹنا تھا وہاں پہ 8% ٹیکس ہو گیا، جہاں پہ 10 کرنا تھا وہاں پہ 15 کر دیا گیا۔ گزشتہ 20 سالوں میں یہ 500 ارب سے شروع ہوتا ہوا اب 14,000 ارب روپے پہ آپ کا ٹیکس جاتا ہے۔ فگرز کو، ود ہولڈنگز کو انکریز کیا جائے، وہ ان لوگوں نے انکریز کر لیا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید اچیو ہو جائے۔ حکومت کہتی ہے کہ اب نان فائلر نہ جائیداد خرید سکے گا، نہ گاڑی خرید سکے گا، نہ بینک اکاؤنٹ کھول سکے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو نان فائلر کی کانسیپٹ کے خلاف ہوں۔ ہم نے پہلے فائلر اور نان فائلر کی ٹرم انٹروڈیوس کری اور پچھلے سال لیٹ فائلر کی بھی ایک ٹرم انٹروڈیوس کری۔ کیا قصور ہے ایک بندے کا جو پچھلے 20 سال سے 25 سال سے ٹیکس دے رہا ہے اور وہ اب بھی ٹیکس دے رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ نان فائلر کو کہتے ہیں کہ وہ 15 سال سے ٹیکس نہیں دے رہا، وہ 1% ایڈیشنل ٹیکس دے اور وہ ٹرانزیکشن کر لے۔ کو خدا نہ خواستہ اگر زندگی اور موت کا بھی سما ہوا تو وہاں پہ بھی ہم فائلر اور نان فائلر کی ڈسٹنگوش کرنی پڑے گی تاکہ لوگوں سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کریں۔ عام آدمی یا عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں، مگر اشرافیہ کو مراد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عام آدمی اور اشرافیہ کا تو ہمارے ملک میں ڈے ون سے دو قومی نظریہ نہیں رہا، دو قومی نظام چلتا ہے۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جی اگر آپ لون لے کے کوئی گھر بناتے ہیں اس کے اندر آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا۔ یہ 5 لاکھ میں اگر کوئی بھی منسٹر اپنے بچے کا، اپنے پیٹرول کا ایکسپینس اگر پورا کر دے، کبھی ان کا کسی نے آڈٹ کیا ہے؟ اس ایکسٹنگ ٹیکس پیئر کو ہی نچوڑا جائے گا اور رائٹ اور رانگ وداؤٹ فلفلنگ دی پرنسپل آف جسٹس، تو پھر میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا۔ منسٹر جو ہے اس کا کبھی آڈٹ ہوا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے FBR کی، پاسبل ہی نہیں ہے، کسی کورٹ میں نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی آرڈر پاس کر سکیں۔ پاکستان میں IT اور آن لائن پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب دنیا ای کامرس کی طرف جا رہی ہے اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم کوریئر کمپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے ٹیکس کلیکٹ کر کے دینا ہے۔ جہاں گورنمنٹ ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں پہ FBR آلسو نیڈس ٹو مائنڈ فریم کہ وہ اپنے بجٹ اچیو کرنے کے چکر میں بزنسز بند کرانے کے ماحول نہ کریٹ کرے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس آپ کا 236C سیکشن A سے لے کے آپ کا Z تک وہ صرف یہی بیان کرتا ہے کہ لوگوں سے آپ نے ٹیکس کیسے کلیکشن کرنی ہے۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے تمیمی آرڈیننس آیا جس میں کلیکشن ریکوریز کے اوپر ایک انڈیو قسم کی ہراسمنٹ اور وہ سارا ماحول کریٹ کیا گیا جو کہ اس بل کے اندر بھی لایا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تصوام کے ساتھ میں حفظ ایوبی۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے بجٹ 2025 اور 26 پیش کر دیا ہے۔ کیا کھویا کیا پایا؟ اس بار ٹیکس اہداف 14,131 ارب روپے کے رکھے گئے ہیں۔ کیا عام آدمی کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ کون سے سیکٹر کو حکومت نے اس دفعہ فوکس کیا ہے اور کون سے ایسے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں جس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اور کون سی مراعات یا رعایت دی گئی ہیں جس سے عوام کو فائدہ ہوگا؟ اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے، مجھے پروگرام میں جوائن کریں گے ذیشان اعجاز صاحب،
साहब, आप FCA हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, KPMG के पार्टनर हैं और ICAP के साबिक सीनियर नायब सदर रह चुके हैं और मुझे ज्वाइन करेंगे फरहान शहजाद साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, साबिक वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के, साबिक सदर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जिशान इजाज साहब। जिशान इजाज साहब, आपको अपना प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये बताइएगा कि बजट 2025 और 26 को आप किस तरह देखते हैं, क्या खोया क्या पाया? अस्सलाम वालेकुम यूबी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। बजट आ गया, कल हमने रात भी लगाई, सारा उसको थ्रैश डाउन किया। अगर आप देखें, मैं अपनी अगर बात करूं तो बहुत सालों से, पिछले 20 सालों से बजट्स के ऊपर हम लोग कमेंट करते आए हैं, ठीक है। ये बजट को मैं किस तरीके से देखूं, मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है। प्रैक्टिकली बजट में कोई खास स्टेप्स नहीं किए गए जिसमें आप कहते हैं कि टैक्स बेस को इंक्रीज किया जाए। आज आके फिगर क्रंचिंग वर्क ज़्यादा लग रहा था कि 5 को 10 कर दो, 8 को 12 कर दो, 6 को 7 कर दो, वो ज़्यादा काम किया गया है, जिसकी वजह से फीलिंग ये आ रही है कि आपने बजट जो टोटल रखा है उसको अचीव करने के तरीक़ेकार क्या किया जाए विदाउट इंक्रीजिंग दी टैक्स बेस। कोई नया टैक्स नेटवर्क में सेक्टर लाने की कोशिश नहीं की गई। आपने जो ज़्यादातर फोकस मुझे लगा है जो कि पिछले 1 साल से ख़ास तौर पे FBR कर रहा है, वो यही है कि जी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को जितना नचोड़ा जाए। एक तो होता है कानून के तहत, दूसरा एक और इसमें इंटरेस्टिंग माइंड फ्रेम देखा जा रहा है पिछले कुछ 7-8 महीनों से, उन्होंने रिकवरी करनी है, जो मर्जी हो जाए। कुछ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी ऐसा आया कि जिसमें यानी उसका मतलब आसान जुबान में ये बनता था कि जी जो मर्जी हो जाए, मैनू है पैसे चाहिए। उस माइंड फ्रेम को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के क्या ये लायबिलिटी बनती है नहीं बनती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के जिस बेस पे वो रिकवरी की जा रही है उसका हिस्टोरिकली टैक्स पेयर के केस में, उस स्पेसिफिक केस में रेलेवेंस है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुझे कोई बहुत मुनासिब महसूसमेंट उसमें नहीं हुई है। आई बिलीव के कुछ चीज़ों को उसको देखना पड़ेगा और इसको बड़ा स्पेसिफिक बजट के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से इसको आगे लेके चलना पड़ेगा। जिशान इजाज साहब, ये भी बताइएगा कि अगर इस बजट को पिछले साल के बजट से मुआवजा किया जाए तो हुकूमती परफॉर्मेंस और कारकर्दगी और मुआशी पॉलिसियों में क्या बेहतरी आई है या मजीद हम अपनी इकॉनमी को अंधेरों की तरफ धकेल रहे हैं? एक हो गया बजट, एक हो गया ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियोज, स्टेप्स बीइंग टेकन, वो सारा कुछ। तो उसको अगर मैं सामने रखते हुए देखूं तो वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में कुछ पॉलिसीज ऐसे ओवरऑल लाई गई हैं हुकूमत की तरफ से जिसका मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आपका इंटरेस्ट रेट नीचे किया गया है, आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको मैनेज करने की कोशिश की गई है। सो ओवरऑल कुछ जो FBR की पॉलिसीज हैं उसको मैं साइड पे रखूं तो अदर देन दैट गवर्नमेंट लेवल पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं मुझे लग रहा है कि इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त थोड़ा सा हमारा एक इकोनॉमिक डाउनफॉल था, वो रुक के हम लोग एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। देन यू कैन कॉल मी अ बिट ऑप्टिमिस्टिक, बट मुझे लगता ये है कि उसके बाद ग्रोथ का एलिमेंट शुरू होने का चांस है। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है फरहान शहजाद साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल। फरहान शहजाद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि बजट 2025 और 26 में आम आदमी को कोई रिलीफ दिया गया है या नहीं? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट 2025 और 2026 ये हर साल की तरह एक तयशुदा बजट जो कि हमें IMF से पहले से तरतीब शुदा और लिखा हुआ मौसूल होता है और उससे ऑनवर्ड हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हम सिर्फ उन लिखे हुए आदादो शुमार को एक आम आदमी के बेनिफिट, उसकी सहूलियात को मद्देनजर रखे हुए बगैर हम ये बजट बनाया हुआ हमें मिलता है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि आम आदमी के रिलीफ के लिए ना कोई बात की जाती है, ना ही यहाँ के किसान, मजदूर और डेली वेजेस वाले तबके का कोई ख्याल रखा जाता है। क्या बिजली के बिलों में कमी आई? क्या गैस के बिलों में कमी आई? क्या आपकी पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी आई? क्या आपकी लोकल इंडस्ट्री को कहीं फरोग मिला? क्या आपने एक्सपोर्टर्स के लिए कोई बेनिफिट्स दिए? क्या आपने फॉरेन रेमिटेंस के लिए आपने कोई बेहतरी के इकदाम किए? IT इंडस्ट्री को आपने कहीं प्रमोट किया? तो जवाब आपको नफी में मिलेगा। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी इफेक्ट होती है, आम आदमी इफेक्ट होता है और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने तमाम जो अशराफिया के मकासद हैं, उनके जो अखराजात हैं, पुरतईश अखराजात हैं, वो तमाम पूरे करने के लिए हम इन बजट से हम तमाम पूरा साल FBR
लोगों की जेबों में से, लोगों के अकाउंट्स में से पैसे निकलवा के ये बजट पूरा करके IMF को देते हैं। इसी तरह हम जब भी देखें तो FBR आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी मोड में बना हुआ इदारा नजर आता है। अदरवाइज किसी भी बिजनेस प्रमोशन के लिए, किसी बिजनेस इंसेंटिव के लिए या आम आदमी के टैक्स के मसाइल को दूर करने के लिए आज तक इक़दामात नहीं किए जाते। क्या उन्होंने टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा किया या टैक्स फाइलर्स को कोई रिलीफ दिया? जो लोग डॉक्यूमेंटेशन में आए, जो लोग टैक्स फाइलर्स में आए, उनके ऊपर ही ये तमाम कवानीन, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो, सेल्स टैक्स एक्ट हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम एक्ट हो, तो ये तमाम टैक्सेशन के कवानीन वो उन्हीं पे लागू होते हैं। लेकिन आज तक हमारी पार्लियामेंट की ये जुर्रत नहीं हो सकी कि हम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को प्रॉपरली इन्फोर्स कर सकें, अपने अशराफिया पे जो टैक्स लगाया है वो वसूल भी कर सकें। तो इसलिए हमेशा जैसे महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ी, तो वो आपको ईद के फौरन बाद एक तोहफा बजट की सूरत में मिला। और ये बजट इसलिए भी आम आदमी की कमर तोड़ेगा क्योंकि ये पहला और आखिरी नहीं है। इससे पीछे आपको जो टैक्स अमेंडमेंट लॉज का बजट मिला वो तमाम इस बजट का हिस्सा है। और आज जब वो अप्रूव होने जा रहा है तो तमाम बिजनेस कम्युनिटी, तमाम टैक्स प्रैक्टिशनर्स, तमाम लोग वो इसको इसलिए डिसअप्रूव करते हैं और इसको इसलिए उन्होंने मानने से इनकार किया कि जब आपने पूरे साल में 4 बजट देने हैं तो फिर इस बजट की कोई हैसियत और वक़्त तो नहीं। ये आप एक पेपर लेके वजीर खजाना पार्लियामेंट में पढ़ देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि हुकूमत ने अगर ये हमारी तजावीज ना मानी तो कितनी डिटाई से वो कहते हैं कि मैंने फिर भी मुख्तलिफ सेक्टर्स पे टैक्स ज्यादा करके वो आपसे कलेक्ट कर। तो इसलिए आम आदमी को आज भी ना कोई रिलीफ है, ना आइंदा इस बजट से रिलीफ होता हुआ नजर आता है। जिशान इजाज साहब, ये भी बताइएगा कि 14,131 अरब का जो टैक्स टारगेट रखा गया है कि यह पूरा होगा? क्योंकि इस बजट में कोई रोड मैप नहीं दिखाया गया, ना बताया गया है कि किस तरह अहदाफ को पूरा किया जाएगा। और इस साल भी 1200 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। यूबी साहब, ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं मिला, उसमें अगर आप देखें तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे 5% टैक्स कटना था वहां पे 8% टैक्स हो गया, जहां पे 10 करना था वहां पे 15 कर दिया गया। तो हुआ ये है कि जितना इंक्रीज आपने 5% इंक्रीज करने की कोशिश की है फ्रॉम द प्रीवियस बजट टू द न्यू पोटेंशियल टारगेट, उसको सामने रखते हुए मेरा जहां तक ख्याल है कि ये अचीव हो जाएगा। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जरूर होगा कि टैक्स पेयर्स नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, उनके बिजनेसेस भी इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाया गया है कि जी फिगर्स को, विद होल्डिंग्स को इंक्रीज किया जाए, वो उन लोगों ने इंक्रीज कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद अचीव हो जाए। जिशान इजाज साहब, ये भी बताइएगा कि बजट में सरमायाकारी लाने और इन्वेस्टर को लाने के लिए और मुआशी इस्तेहकाम के लिए क्या मुस्बत तब्दीलियां लाई गई हैं? अच्छा यूबी साहब, यहाँ पे मेरा कंसर्न है क्योंकि मेरे ख्याल में आपने जो कुछ स्टेप्स इस बजट में या पिछले 1 साल में डिफरेंट तमीमी ऑर्डिनेंस में किए हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बिजनेस अनफ्रेंडली हैं। और आई थिंक ना सिर्फ वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे बल्कि उसको अगर आप आगे लेके चलें, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी समहाउ हम एक सिचुएशन में आए हुए हैं कि फॉरेन एंटिटीज आर एग्जिटिंग दिस कंट्री ड्यू टू व्हाटएवर डायनामिक्स, उसको शायद उसको टर्बो लगा सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमें ना सिर्फ देखना है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को रिटेन करना है बिकॉज ऑफ द बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बल्कि नए इन्वेस्टर्स को भी लेके आना है। लेकिन इस बजट में जैसे वेंचर कैपिटल की क्लॉज को आपने डिलीट किया गया है। देखें, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी आती है तो इफेक्टिवली उसने आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद प्रॉफिट करके एग्जिट करना होता है। दैट्स देयर बिजनेस मॉडल। तो अगर आप कैपिटल गेन पे उनकी एग्जेम्पशंस लगा देंगे और खत्म कर देंगे तो इफेक्टिवली वो क्यों पाकिस्तान में आएंगे, या उसको इंक्रीज कर देंगे तो क्यों पाकिस्तान में आएंगे। यहाँ पे जैसे कुछ तमीमी ऑर्डिनेंस जो मैं आगे भी जिक्र करूंगा, यानी उसमें जो आपने माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है उससे तो लोकल बिजनेसमैन तंग आ जाएगा। तो इफेक्टिवली फॉरेन इन्वेस्टर व्हाई वुड दे कम इनटू योर कंट्री व्हेन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंपैक्ट करेगा। तो मेरे जहां तक ख्याल है हमें इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखने की जरूरत है और हमें इसको कुछ चीजें बजट रेवेन्यू कलेक्शन की बजाय हमें इसको देखना है कि बिजनेस जब इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली फॉरेन इन्वेस्टर जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो इनकम कमाएंगे तो टैक्स वो ऑटोमेटिकली देंगे, बजाय कि हम इतना ज्यादा टैक्स लगा दें कि आपके फॉरेन इन्वेस्टर क्या लोकल भी बिजनेसमैन वहां पे काम ना करे। जब लोकल बिजनेसमैन काम नहीं करेगा तो लाजमी बात है उनका प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन तो ऑटोमेटिकली कम होनी है। सो दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। फरहान शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि इस बजट में टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिखाया गया, ना बताया गया है। क्या ये टैक्स टारगेट पूरे होंगे? बड़े अफसोस के साथ ये कहना
پڑتا ہے کہ دنیا میں جو ایک ٹیکس سورس آف انکم ہے وہ حکومتیں چلانے کے لیے ایز اے سورس آف انکم جو ہے اڈاپٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ لوگوں کے بینکس، لوگوں کی جیبوں میں سے لوگوں پہ بلا تمہید کسی بھی لیگل ریزنز کے باوجود بغیر ٹیکس لگانا اور ان سے کلیکٹ کرنا، وہ ایک ہمارا کھیل بن چکا ہے. ہم ٹارگٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر، ہمارے آڈیٹرز، ہمارے ایڈیشنل کمشنر، چیف کمشنر، ممبرز اور چیئرمین، آپ جب بھی کبھی بھی کسی ٹیکس آفس میں چلے جائیں تو سوائے وہ ٹارگٹس کی فگر کو میچ کرنے کے، مینٹین کرنے کے اور اپنی ہائر اتھارٹیز کو دینے کے علاوہ شاید ان کی کوئی اور مصروفیات نہیں ہے. کوئی بھی نوٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو پراپرلی نہ ڈرافٹڈ ہوتا ہے، نہ اس پہ کام کیا جاتا ہے. آپ کوئی بھی اسسمنٹ آرڈر اٹھا کے دیکھ لیں تو تمام ڈاکومنٹیشن کے باوجود ان کا فوکس ٹیکس لگانے پہ صرف ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کمشنر اپیلز میں چلے جائیں، آپ کے جو ٹریبونل کورٹس ہیں یا آپ کی ادر کورٹس ہیں، تو اس وقت تمام جگہوں پہ صرف اور صرف ایک ٹیکس کلیکشن کا ماحول آپ کو نظر آئے گا. ہر شخص صرف اور صرف فگرز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ملینز کی ہیں یا بلینز کی ہیں، تو وہ انصاف کا ترازو چھوڑ کے وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے پہ صرف بیٹھے ہیں. انہیں یہ اس بات سے بالکل کنسرن نہیں ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کا آرڈر غلط ہے، کمشنر کا آرڈر غلط ہے، یا آن ورڈز وہ کہیں پہ ان سے کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ٹارگٹ ہر سال کی طرح جان بوجھ کے زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں سے ہر سال تھوڑا سا شارٹ فال شو کیا جائے. کبھی کبھار وہ ٹیکس ٹارگٹس پورے بھی کیے گئے، لیکن کبھی بھی میں نے کہا آپ کے پاس 4 یا 5 ملین سے زیادہ ٹیکس فائلر کی تعداد نہیں بڑھی. لیکن گزشتہ 20 سالوں میں یہ 500 ارب سے شروع ہوتا ہوا اب 14,000 ارب روپے پہ آپ کا ٹیکس جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ ہر سال اس کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے ان ہنسوں کو FBR کی کارکردگی کے ساتھ نہیں تولا، نہ اس کو متعین کیا کہ FBR میں جو اس وقت تمام لوگ ایز اے ٹیکس کلیکٹر کام کر رہے ہیں ان کی طرف بھی یہ موازنہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ورکنگ کر رہے ہیں اور ٹیکس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں صرف وہ مصروف ہے یا پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے ٹیکس پیئر اور ٹیکس کنسلٹنٹ کے لیے بھی کوئی بہتری کے اسباب کیے جا رہے ہیں. جی شاہنجاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب ٹیکس دہندگان کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایوبی صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ایک تو ان کی پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ بزنس کو فلرش کروائیں. بزنس ان کی پلاننگ ہے، اس کو گروتھ دکھائیں، پروفٹ کمائیں، سارا کچھ بزنس چلتا رہے. لیکن آئی تھنک اس بجٹ میں اور پچھلے کچھ عرصے میں جو تمیمی آرڈیننس آئے ہیں ان کو ایک اور ٹینشن میں ڈال دیا گیا ہے کہ بزنس کریں وہ یا FBR کے ان ریگولیشن سے بچنے کی کوشش کریں جو کہ ان سے ریلیونٹ بھی نہ ہوں، ایسے کسی ججمنٹ پہ بیس ہوں جو کہ پچھلے 20 سال پہلے آئی ہو اور شاید تب قانون بھی فرق ہو، لیکن ان کو آج ڈر لگے کہ جی کوئی پتہ نہیں کل صبح ان کے بینک اٹیچ کر دیے جائیں بغیر ان سے پوچھے، بغیر ان کو کوئی لیگل انسینٹیو دیے، بغیر ان کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں انڈر دا لا، وہ اس کا بینیفٹ دیے بغیر ان کے پیسے نکال لیے جائیں اور بعد میں ان سے پوچھا جائے کہ تم گلٹی تھے کہ نہیں تھے اور وہ ثابت کرتا رہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دس actually negates the basic principle. They, without proving them guilty, they will recover those amounts. بعد میں ٹیکس پیئر پہ ہے کہ وہ دہائیاں دیتا رہے، کورٹس میں جا کے ثابت کرتا رہے کہ وہ گلٹی نہیں تھا، اور اگر وہ ثابت ہو جائے کہ وہ گلٹی نہیں تھا، پھر سوال میرا یہ ہے کہ کون یہ ثابت کرے گا کہ وہ پچھلے عرصے میں جو اس کا بزنس افیکٹ ہوا اور جو ٹیکس لائبلٹیز غلط قسم کی FBR نے ریکور کر لیں اس کا کون جواب دے گا. تو یہ ایک ایڈیشنل ہیسل کریٹ کی گئی ہے جس کو بزنس کمیونٹی کو دیکھنا پڑے گا، اس پہ میرے خیال میں آواز اٹھانی پڑے گی. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن آئی تھنک بزنس کمیونٹی کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا پڑے گا. دے نیڈ ٹو بی ویری مچ ڈاکیومنٹڈ. جو بھی نئے پروجیکٹس اور پرانے پروجیکٹس کو دے نیڈ ٹو بی ویری مچ کلیئر کہ اگر کہیں بھی گرے ایریا ہے یا کوئی ایریاز ہیں جس پہ ان کو طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہم اب جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم جس ٹائم پہ آ گئے ہیں، اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ نہیں ہے کہ جی دیکھا جائے گا جدو کچھ ہوئے گا. اب وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ٹیکس پلاننگ آن دا گراؤنڈ. فرحان شہزاد صاحب، یہ بھی بتائیے گا، حکومت کہہ رہی ہے اس بجٹ کے بعد نان فائلر نہ جائیداد خرید سکے گا، نہ گاڑی خرید سکے گا، نہ بینک اکاؤنٹ کھول سکے گا، نہ کوئی بڑی ٹرانزیکشن کر سکے گا. کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہوگا؟ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دنیا میں کہیں پہ بھی نان فائلر اور فائلر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس معاملے میں پوری دنیا میں نمبر 1 ہیں کہ ہم نے پہلے فائلر اور نان فائلر کی ٹرم انٹروڈیوس کری اور پچھلے سال لیٹ فائلر کی بھی ایک ٹرم
इंट्रोड्यूस करें। और आइंदा हम शायद हर सेक्टर पे, किसी खाने वाले पे, किसी को खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी और मौत का भी समा हुआ तो वहां पे भी हम फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंग्विश करनी पड़ेगी, ताकि लोगों से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करें। आप पाकिस्तान का अलमिया देखें कि लोग फाइलर बनने से ज्यादा नॉन फाइलर का टैक्स देने पे आज भी प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि फाइलर बन के कल को जब आपने डिपार्टमेंट के नोटिस रिसीव करने हैं, असेसमेंट ऑर्डर रिसीव करने हैं और एक नया करप्शन का बाजार गर्म होना है, तो उस सूरत में फाइलर आज भी कहता है कि मेरे साथ वाला नॉन फाइलर ज्यादा फायदे में बैठा हुआ है, उसी क्यू में नॉन फाइलर इलाज करवा रहा है, उसी क्यू में वो सफर कर रहा है, उसी क्यू में वो अपनी जब जाती तमाम यूटिलिटीज को अपने पैसों से एंजॉय कर रहा है, तो वो कहता है मैं फाइलर बन के इस मुल्क के लिए मैंने कौन सा कंट्रीब्यूशन करना है। जब वो पार्लियामेंटेरियंस के, जब वो इन तमाम FVR के इन तमाम अखराजात को देखते हैं, तमाम मिनिस्ट्रियल जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारी 70 से ज्यादा, उनके अखराजात देखते हैं, तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा हुजम कहीं पे मौजूद नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने पिसना तो है, मैंने गुर्बत की चक्की में रहना ही है, तो मैं नॉन फाइलर के तौर पे मरना पसंद करूंगा। फाइलर होके मैं फिर भी इस मुल्क में कभी भी इस गवर्नमेंट के इस FVR के हाथ नहीं आऊंगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिशान जा साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले साल तरमीमी ऑर्डिनेंस, SROs, नोटिफिकेशन सारा साल आते रहे, इस बजट के बाद भी कोई ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा? क्योंकि वजीर खजाना साहब कहते हैं हमने पूरे साल में कोई मिनी बजट हम नहीं लेकर आए। यूबी साहब, पिछले साल में भी प्रैक्टिकली जो मिनी बजट को हमें देखना है कि मिनी बजट किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। क्या नए टैक्सेस लगाने की बात हो रही है? मुझे लगता है कि पिछले साल इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो बजट का एक हिस्सा होता है रेगुलेटरी, जिसमें डिफरेंट कवानीन लाए जाते हैं और फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ टैक्सेस, वो सारा कुछ किया जाता है। तो वो तो पिछले साल भी 2-3 दफा आए। आपको याद होगा कभी 2-3 हफ्ते पहले तमीमी ऑर्डिनेंस आया जिसमें कलेक्शन रिकवरीज के ऊपर एक अनड्यू किस्म की हरासमेंट और वो सारा माहौल क्रिएट किया गया, जो कि इस बिल के अंदर भी लाया गया है। इसके अलावा 7-8 महीने पहले भी एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिसमें प्रैक्टिकली नॉन फाइलर्स या एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, एलिजिबल पर्सन और इनएलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन वो हैं जो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा, जिन्होंने रिटर्न फाइलर्स होंगे, और उनको अलाउ किया जाएगा कि वो गाड़ी खरीद सकें, रियल एस्टेट खरीद सकें, बैंक अकाउंट खोल सकें, कैश विड्रॉल कर सकें। बट उसमें भी प्रॉब्लम ये आई कि IMF को खुश करने के लिए वो रेगुलेशन तो लाई गई, हर क्लॉज के अंदर ये डाल दिया गया सवाए गाड़ियों वाले, FBR वुड जॉट डाउन द रेलेवेंट पैरामीटर्स और वो फिर अप्लाई होगा। तो वो ना आज तक हुए। इस बिल का भी वो कानून हिस्सा बनाया गया है, लेकिन उसको सामने रखते हुए अभी उसमें भी लिखा हुआ है कि जी रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द FBR। तो इफेक्टिवली जो कवानीन है और वो सेक्शन एज ऑफ नाउ यूजलेस है जब तक रेलेवेंट कवानीन इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जब तक रेलेवेंट कवानीन लाए नहीं जाएंगे। और मेरा जहां तक ख्याल है वो कवानीन लाने चाहिए। इनएलिजिबल पर्सन या नॉन फाइलर्स को मेरा जहां तक ख्याल है टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, उनको समहाउ किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, बल्कि उनको इंसेंटिवाइज करने की बजाय उनको कार्व आउट करना पड़ेगा। तो दैट्स द ओनली वे टू इंक्रीज द टैक्स बेस एंड टू स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स। निशान जा साहब, हुकूमत कहती है कि अब नॉन फाइलर ना जायदाद खरीद सकेगा, ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना बैंक अकाउंट खोल सकेगा। आप क्या समझते हैं? यूबी साहब देखें, जो नॉन फाइलर है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसको क्लियर है। मैं तो नॉन फाइलर की कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं। देखें, नॉन फाइलर को हमने सर्टेन अमाउंट एडिशनल टैक्स दे के सर्टेन ट्रांजैक्शंस अलाउ की हुई हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ एमनेस्टी दी हुई है। क्या कसूर है एक बंदे का जो पिछले 20 साल से 25 साल से टैक्स दे रहा है और वो अब भी टैक्स दे रहा है? उसके मुकाबले में आप नॉन फाइलर को कहते हैं कि वो 15 साल से टैक्स नहीं दे रहा, उसने गाड़ी खरीदनी है, उसने कुछ और चीज खरीदना है, जमीन खरीदनी है, ये करना है, वो 1% एडिशनल टैक्स दे और वो ट्रांजैक्शन कर ले। तो मैं तो इसके अगेंस्ट हूं। नॉन फाइलर्स को कोई इंसेंटिव किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। रेदर दे शुड बी बार्ड फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, बजाय कि उनको ये इंसेंटिव दिया जाए कि जी आप 1% एडिशनल टैक्स दें और बाकी उसके अलावा पिछले 15 साल का टैक्स एवेट कर लें। फरहान शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि दुनिया ई कॉमर्स की तरफ रवा दमा है, जबकि पाकिस्तान में IT
और ऑनलाइन पर टैक्स लगा दिया गया है, आप क्या समझते हैं? सारा साल ना ही किसी सेक्टर्स की स्टडी करते, ना हम मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान लोगों की जेबों पे है, लोगों के बैंक्स पे है, लोगों के एक्सपेंसेस पे है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है। जब दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है और लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ प्रमोट कर रही है, और हमारी बदकिस्मती देखें कि हम कोरियर कंपनीज को कह रहे हैं कि आपने इनसे टैक्स कलेक्ट करके देना है। क्या पॉसिबल है कि 1, 2, 3, 4, 5 रजिस्टर्ड कोरियर कंपनीज के अलावा एफबीआर के पास किसी का रिकॉर्ड भी है? क्या जो लोकल आपके कोरियर जो बाइक्स पे, जो छोटी छोटी वैन्स पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनसे टैक्स कलेक्ट करने का कह रहे हैं? वो अगर आपकी इनवॉइस में टैक्स कलेक्ट भी कर लेंगे तो डिपार्टमेंट को जमा कौन करवाएगा? अल्टीमेटली बोझ सारफ पे पड़ा, सारफ से टैक्स निकल आएगा, लेकिन गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाने को कोई तैयार नहीं है। गवर्नमेंट के पास, एफबीआर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सके और लोगों को भी ये यकीन हो कि मेरा टैक्स का पैसा मेरे ऊपर खर्च होगा। तो इसीलिए ऑनलाइन पे, आईटी सिस्टम्स पे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स पे प्रमोट करें कि आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट होगी तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा, आप अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको टैक्स लगेगा। कैश ऑन डिलीवरी पे लगा दिया, कलेक्शन कौन करेगा? इससे पहले भी पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका 236C सेक्शन ए से लेके आपका जेड तक वो सिर्फ यही बयान करता है कि लोगों से आपने टैक्स कैसे कलेक्शन करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कलेक्शन कभी भी आपकी गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं आई। 149 की प्राइवेट कंपनियां सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो रही हैं, जमा नहीं हो रहा। 148 इंपोर्ट पे आ रहा है तो आ गया, 149 के बाद 153, 154 एक्सपोर्ट में मिल गया, लेकिन विद होल्डिंग्स जितनी भी हैं आप कम से कम प्राइवेट कंपनीज का डाटा निकाल के देखें, उनमें से 50% वो विद होल्डिंग जमा ही नहीं होती। लोगों ने अपने बजट मुख्तस किए हुए हैं कि ये हमने बाद में 161 की असेसमेंट करवाने के लिए ये टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है ताकि हम 5 करोड़ की टैक्स चोरी करें और 5 मिलियन में हम उसको जस्टिफाई करवा लें और उसका ऑर्डर करवा लें। तो लेकिन एफबीआर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो उन्हें ऑनलाइन सिस्टम को, आईटी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए सोचना चाहिए। अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर करें, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, लोगों की जेबों पे तवज्जो देनी छोड़ दें। निशान एजाज साहब, बजट के बाद महंगाई और बेरोजगारी जन्म ले सकती है? देखें, ये जो आपका सवाल है यूबी साहब, देखें इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क की किस तरफ जा रही है। यस, इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि टैक्स रेगुलेशंस कैसे हैं, एफपीआर की अप्रोच कैसी है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आया, आपकी करेंसी कंपैरेटिवली स्टेबल हुई, आपका फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल आया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन रेमिटेंस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया गया। तो उसको सामने रखते हुए मेरा जहां तक ख्याल है कि लोकल बिजनेसेस शुड फ्लरिश एंड दे फील कंपैरेटिवली कंफर्टेबल कि देयर इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी एंड देयर इज अ ओवरऑल माइंड फ्रेम जिसमें ग्रोथ आ सकती है। बट दूसरी तरफ अगर एफबीआर या रेगुलेटर एफबीआर इस पॉइंट पे चला जाए कि जी इस तरह की पॉलिसी लाई जाए जिसमें विदाउट कंसिडरिंग and without increasing the tax base, existing taxpayers को ही नचोड़ा जाएगा और right or wrong without fulfilling the principle of justice, तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसका जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली आपकी जिसे कहते हैं जॉब मार्केट पे भी इम्पैक्ट करेगा। अभी देखा जाए तो सैलरी के ऊपर आपने थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेनिफिट देने की कोशिश की है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है एक अच्छी सोच के साथ किया गया है। बिकॉज आप देखें, आपने मिडिल टियर के टैक्स पेयर से या सैलरीड पेयर से उनके ऊपर कंपैरेटिवली बेनिफिट पास ऑन किया गया है, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो उनके अंदर टैक्स इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं था, नंबर बहुत ज्यादा था। तो दैट्स अ राइट अप्रोच, लेकिन उसको ये भी देखने की जरूरत है कि ये सारी चीजें जब आप दूसरी तरफ आते हैं अनड्यू हरासमेंट की तरफ, वो बिजनेसेस को इंपैक्ट करते हैं। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। जहां गवर्नमेंट एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वहां पे एफबीआर आल्सो नीड्स टू माइंड फ्रेम कि वो अपने बजट अचीव करने के चक्कर में बिजनेसेस बंद कराने के माहौल ना क्रिएट करें। निशान एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि इस बजट में हुकूमत ने किसी खास सिमत का तयन किया है या मजीद तब्दीलियां दरकार हैं? बजट की अगर आप बात करें, सिर्फ आई थिंक इन लोगों ने एक एरिया को टच करने की कोशिश की है जिसमें ऑनलाइन सेल्स वाला पोर्शन है, जहां पे शायद एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनरली वो सेल्स रिपोर्ट नहीं होती और उस पर टैक्स एवेड होता है। अदर देन दैट बहुत ज्यादा कोई नए वेन्यूज एक्सप्लोर नहीं किए गए और
और नई टैक्स बेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं लाई गई। तो बजट के स्पेसिफिकली तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। जो हमेशा से कहते रहे हैं कि नए टैक्स बेस इंक्रीज किया जाना चाहिए, नए वेन्यूज को क्रिएट करना चाहिए जहां पे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो, ऑटो कलेक्शन हो, रेदर बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया जाए कि वो टैक्स खुद दें और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी कम हो, उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो और ऑटो टैक्स कलेक्शन में जाए। मेरे ख्याल में उस पर मजीद काम करने की जरूरत है और मेरा जहां तक ख्याल है इस साल बजट में दिस थिंग इज लैकिंग। फरहान शहजाद साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि आम आदमी या अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं, मगर अशराफिया को मरात में भी इजाफा कर दिया गया है, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया गया है, ये कहाँ का इंसाफ है? आम आदमी और अशराफिया का तो हमारे मुल्क में डे वन से दो कौमी नजरिया नहीं रहा, दो कौमी निजाम चलता है। जो गरीब है वो 24 करोड़ में से आपको 98% लोग वो नजर आएंगे जो लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में फॉल करते हैं। ये जो 2% ऊपर इस्लामाबाद में बैठे हुए अशराफिया आपको नजर आते हैं, इन तमाम को तनख्वाहों की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने बिजनेस के लिए वहां जाते हैं। तो जब अगर ये 5 लाख में अगर कोई भी मिनिस्टर अपने बच्चे का, अपने पेट्रोल का एक्सपेंस अगर पूरा कर दे, कभी इनका किसी ने ऑडिट किया है कि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कहां से आते हैं और इन्होंने अपने एक्सपेंसेस कहां से पूरे किए हैं? आज तक आपने किसी टीवी चैनल पे ये सुना है कि फला ऑनर, वो टीवी चैनल का हो या फला मिनिस्टर जो है, इसका कभी ऑडिट हुआ है या इसकी कभी फाइल में से ये चीजें निकली हैं? जरूरत ही नहीं है एफबीआर की, पॉसिबल ही नहीं है, किसी कोर्ट में नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर सके। ऑर्डर पास करना तो दूर की बात है, उनको अगर नोटिस इशू हो जाए तो मिनिस्टर का फोन डायरेक्ट चेयरमैन एफबीआर, फाइनेंस मिनिस्टर और नीचे तक आता है, तो वो नोटिस कहाँ रद्दी की टोकरियों में फेंक दिए जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं। तो उनको तनख्वाहों में मजीद इजाफा करना ये शो कर रहा है कि ना हमें इतने मिनिस्टर्स की जरूरत है, ना हमें इतनी बड़ी पार्लियामेंट की जरूरत है और ना ही ये पॉलिसीज बनाते हैं। पूरा साल के बाद अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF का लिखा बजट ही पढ़ना है तो इन सारों को इतनी बड़ी तनख्वाहों पे क्यों रखा हुआ है? वहां से लिखा हुआ पढ़ के आप इधर दे दें। अगर FBR के लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में से लोगों से रिकवरी ही करके टैक्स का बजट वसूल करना है और पूरा करना है, तो ये आपने जो इतना बड़ा FBR क्रिएट किया हुआ है, इनको पाल रहे हैं, आपने ये किस लिए रखा हुआ है? तो आम आदमी को तो आपने अल्टीमेटली सोलर भी महंगा कर दिया, आपने उसके रहने का एक्सपेंस, उनकी यूटिलिटीज वो नहीं छोड़ी, तो जो उनके लिए एक आम आदमी की जो फैसिलिटीज थी वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। हेल्थ हमने खुद देखनी है, एजुकेशन हमने खुद लेनी है, सिक्योरिटी गार्ड हमने खुद रखने हैं, अपनी जात का हर एक एक्सपेंस हमने खुद देखना है। तो स्टेट सिर्फ और सिर्फ अगर अपने बैरूनी दौरों और अपने कारोबार को डील कर रही है, तो फिर तो आम आदमी का और इस अशराफिया का ये दो कौमी नजरिया इस मुल्क में आज तक चल रहा है, जो कि शायद आगे 77 सालों के बाद भी चलता रहेगा। तो इस पे हम एक उम्मीद की किरण जरूर रखते हैं कि कभी तो इस अशराफिया को जरूर ये ख्याल आएगा कि पिछले जो इससे हुक्मरान थे वो भी अपने आप को यहाँ खुदा समझ के बैठे हुए थे, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है, तो कल को इनका भी नहीं होना। आम आदमी के लिए सोच जाएं तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया में आपका नाम रहेगा, आपकी जमात का नाम रहेगा और लोग आपको आंखों पे बिठाएंगे, सरों पे बिठाएंगे। जिशान एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि इस बजट में किसी खास या आम को कोई रिलीफ दिया गया है? देखिए, रिलीफ मैंने वो जिक्र किया, जैसे आपने सैलरी टैक्स पेयर पे कुछ स्लैब्स को परसेंटेज कम किए हैं, जो कि नंबर शायद मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा होगा, उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट FBR को इतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा आई थिंक एक जो इंपॉर्टेंट की गई है कि जी रियल एस्टेट सेक्टर में आपने ये कहा है कि जी अगर आप लोन लेके कोई घर बनाते हैं उसके अंदर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो ये आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर पे भी थोड़ा सा बेनिफिट आएगा। बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी फॉर द रियल, नॉट द इन्वेस्टर्स, रियल बायर्स जिन्होंने अपने लिए घर बनाना है। तो वो एक जो शायद मेरे ख्याल में सरकार का एक माइंड फ्रेम भी है कि घर प्रोवाइड किया जाए फॉर लो इनकम ग्रुप्स को, लो इनकम पॉपुलेशन को। तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये पास्ट में भी था, दैट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉट ओनली दोज पीपल जो घर बनाना चाह रहे हैं बट ऑल्सो ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। बहुत शुक्रिया फरहान शहजाद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।